गुड मॉर्निंग क्लास। आज मेरा 11 का ये 7th वीडियो है काइनेमेटिक्स के ऊपर ही, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे। आई होप कि प्रीवियस सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको प्रोजेक्टाइल, सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन प्रोजेक्टाइल बताएंगे और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बताएंगे। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? Motion of the body under gravity in 2 or 3 dimensions. Motion of the body under gravity in 2 or 3 dimensions is called projectile motion, and the body is called projectile. There are motion of the body under gravity in 2 or 3 dimensions is called projectile motion, and the body is called projectile. There are 4 types of projectile. 4 types of projectile. First, horizontal projectile. Second, oblique projectile. Third, inclined projectile. Fourth, relative projectile. In a school standard, you will study only horizontal projectile and oblique projectile. But in the case of competition or any IIT or JEE main, you have to also study inclined projectile as well as relative projectile. Before study the horizontal projectile, I will give some important concept on the projectile. Note this one. First, there is no acceleration along x-axis, that is horizontal. h बराबर 0. Second, the velocity, acceleration of x-axis will be independent of y-axis and z-axis. Third, time in each axis will be same. Each axis will be same. Fourth, in positive axis, above physical quantity is taken positive, while in negative axis it is taken negative. Fifth, time of ascent
is equal to time of descent in vacuum. जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही लौटने में भी टाइम लगेगा. Note this one. 5 properties. Important concept है 5. There is no acceleration along x-axis. Velocity acceleration of x-axis will be independent of y-axis and z-axis. Time in each axis will be same. In positive axis, our physical quantity is taken positive, while in negative it is taken negative. Time of ascent is equal to time of descent in vacuum. Sixth, properties number 6. In air friction, time of ascent is less than time of descent. G नीचे लगेगा और A भी नीचे. जाने के समय A प्लस G एक्सेलरेशन लग रहा है, लौटने के समय G और A ऊपर लग रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन G माइनस A है जाने के समय. इससे टाइम ऑफ एसेंट लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट. Seventh properties, horizontal component of the velocity, throughout the motion must be same. Throughout the motion must be same. Horizontal component of velocity throughout the motion must be same. पूरे मोशन में horizontal component सेम होता है. अगर U से प्रोजेक्ट किया गया है, इसका एंगल थीटा है, तो इधर की ओर कंपोनेंट होगा U cos थीटा, इधर U sin थीटा होगा. इस जगह अगर V वेलोसिटी है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो इधर होगा V cos अल्फा, इधर होगा V sin अल्फा. Then U cos theta is equal to V cos alpha. This is the important formula. Can apply in the solving the problem. Can apply this formula. Note this one. In air friction, ascent time of ascent is equal to time of descent, less than time of descent, and in the horizontal component of velocity throughout the motion must be same. Eighth, the vertical component of the velocity first decreases then increases. That is, at maximum height it will be 0. U cos थीटा इस तरह से रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी इतना रहेगा, दूसरा में भी कंपोनेंट इतना ही रहेगा, ये कंपोनेंट घटेगा, ये कंपोनेंट ज्यादा उतना ही रहेगा, ये कंपोनेंट और घट जाएगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, V बाई 0 हो जाएगा. फिर इस जगह कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, वर्टिकल थोड़ा बढ़ेगा, फिर हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, वर्टिकल और थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, वर्टिकल बढ़ जाएगा. इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन मस्ट बी सेम. सब जगह सेम है, लेकिन वर्टिकल फर्स्ट डिक्रीजेस टू 0 एंड देन स्टार्ट टू इंक्रीज.
vertical at maximum height it will be 0, and vertical component of the velocity is 0, dy by 9 properties number. The range will be maximum when it is projected with 45 degree. When it is projected with 45 degree. In oblique projectile. Theta 45, R will be maximum. Tenth, the range will be same. If it is projected with complementary angle. That is alpha plus बीटा इज इक्वल टू 90. इसको डायग्राम से समझाते हैं. मानते हैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया 45 से, तो सबसे दूर तक गया 45 से. 30 से प्रोजेक्ट किया गया तो इतना गया. 60 से प्रोजेक्ट किया गया तो भी इतना ही गया. अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है, तो रेंज सेम होगा. 45 में मैक्सिमम इन ऑब्लिक प्रोजेक्ट. Note this one. The vertical component of velocity first decreases, then increases. That is at maximum height it will be 0. First decreases, it at maximum height will be 0, and then start to increase. The range will be maximum when it is projected with 45 degree, and in oblique projector theta 45, R will be maximum. Range will be same if the projected angle is projected, if it is projected with complementary angle. कंप्लीमेंट्री एंगल से, दैट इज अल्फा प्लस बीटा 90 से प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज सेम होगा. Point number 11. The kinetic energy at maximum height, kinetic energy at maximum height will be cos square theta times of the kinetic energy at bottom will be cos square theta times the kinetic energy at maximum height. अगर किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं थीटा u वेलोसिटी से, u cos थीटा दैट इज एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू u cos थीटा. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू होगा हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू cos स्क्वायर थीटा. इसको फिर से हम चेक करते हैं. द काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट ही होगा ये. काइनेटिक एनर्जी एट टॉप यानी मैक्सिमम हाइट विल बी cos स्क्वायर थीटा टाइम काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होगा. अगर थीटा 45 डिग्री है तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 आधा हो जाएगा. अगर थीटा 45 है तो, अगर थीटा 60 है तो काइनेटिक एनर्जी टॉप इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी बाय cos थीटा 1/2 उसका होल स्क्वायर 4. थीटा 60 होगा तो 1/4 हो जाएगा. 30 है तो काइनेटिक एनर्जी टॉप इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी cos 30 होता है √3/2 यानी 3 काइनेटिक एनर्जी बाय 4. इस तरह से थीटा इज 30 डिग्री. अलग अलग एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होगा। इसको याद रखेगा, एक बार में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि थीटा इतना है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइपर काइनेटिक एनर्जी क्या हो, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट 12 पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, रिलेशन बिटवीन 12, relation between maximum height and range R max by H, maximum height by range is equal to 1/4 tan theta। और इसका इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है क्योंकि हाइट और रेंज दे देगा और बोलेगा कि आपका बताइए कितना एंगल से प्रेजेंट किया गया, एक लाइन में बताना है। इसका भी ऑब्जेक्टिव में बहुत रोल होगा। इफ h बराबर 13 पॉइंट अगर लेंगे, इफ h बराबर r, tan थीटा बराबर 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, दैट इज 75.96 डिग्री, अप्रॉक्स 76 डिग्री। इतना एंगल से फेंकेंगे तो जितना रेंज होगा उतना ही मैक्सिमम हाइट होगा। अगर हम 76 डिग्री से फेंक रहे हैं तो जितना h होगा, जितना h होगा उतना ही r होगा, अगर दोनों को सेम रखेंगे तो 76 डिग्री पर फेंकने पर। 14 पॉइंट क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। 14 पॉइंट क्या है, path of the projectile will be parabolic, path of the projectile will be parabolic। How can you identify? X by a plus y by b is equal to 1। this one will be the equation of a straight line। कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन है? दोनों वेरिएबल, एक्स वेरिएबल पर भी एक पावर है, वाई वेरिएबल पर भी एक पावर, दोनों पर अगर एक एक पावर होगा एक्स और वाई पर, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई बी बाई बी बराबर 1, या एक्स बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी बराबर 1, ये दोनों इक्वेशन पैराबोला का है। एक पर दो पावर, दूसरे पर एक पावर, या एक्स पर एक पावर तो वाई पर दो पावर, दो वेरिएबल में किसी एक पर एक पावर और दूसरे पर दो पावर होगा तो ये पैराबोला होगा। तीसरा, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई ए बराबर 1, दिस इज सर्कल। अगर दोनों पर दो दो पावर, इंटरसेप्ट उसका कोफिशिएंट इक्वल है तो दैट इज सर्कल। तो स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ होगा, पैराबोला का ग्राफ ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। सर्कल का ग्राफ इक्वल रेडियस होगा। फोर्थ, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी बराबर 1, इलिप्स। अगर दोनों पर दो दो पावर, यहां भी दो दो पावर है लेकिन कोफिशिएंट सेम है, यहां कोफिशिएंट डिफर कर रहा है, तो ऐसे में इलिप्स होगा। इस तरह का होगा या इस तरह का होगा इलिप्स, दोनों तरह का हो सकता है। यहां पर अगर ये ए है तो ये बी है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ऐसा होगा, और ये बी है, ये ए है तो बी इज ग्रेटर देन ए होगा, तो इस तरह का इलिप्स होगा। सिक्स्थ, एक्स स्क्वायर, फिफ्थ होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए माइनस वाई स्क्वायर बाई बी बराबर 1, या एक्स वाई स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी बराबर 1, दोनों हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। कैसा बोला का इक्वेशन होगा, कैसा होगा इसका, x की तरह होगा। x अगर x निगेटिव है, तो ऐसा होगा, अगर y निगेटिव है तो ये ग्राफ ऐसा होगा। x को ही हाइपरबोला बोला जाता है। तो आपको हम पूरा मैथ का सभी जितने क्वाड्रेटिक का है उसको एक ही लाइन में आपको देख कर कैसे हम पहचान जाएंगे कि क्या चीज है। दोनों पर एक एक पावर तो स्ट्रेट लाइन, एक पर दो, एक पर एक पावर तो पैराबोला, दोनों पर दो पावर कोफिशिएंट सेम तो सर्कल को, दोनों पर दो पावर कोफिशिएंट डिफरेंट तो इलिप्स, दोनों पर दो पावर कोफिशिएंट सेम और डिफरेंट बीच में लेकिन माइनस होगा तो हाइपरबोला। और सबका ग्राफ इस तरह से बनता है।
तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये 15वां पॉइंट दे सकते हैं आइडेंटिफाई करने वाले को। 14 तक की पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। ओके, नोट कर लीजिए। 16th प्रॉपर्टीज क्या है? अगर किसी बॉडी को एच हाइट से यू वेलोसिटी से ए को ऊपर की ओर, बी को हॉरिजॉन्टली और सी को यू वेलोसिटी से नीचे की ओर फेंका जाए, सबको यू से फेंका जाए, तो टाइम इसका मानते T2 T3 टाइम लगा, इसमें T1 लगा, इसमें T2 लगा। देन जब दो तीनों का रिलेशन जमीन पर पहुंचने का, एक ऐसे पहुंचेगा, एक ऊपर से ऐसे जाकर के पहुंचेगा, तो T3 इज इक्वल टू रूट ओवर T2 इंटू T1। ज्योमेट्रिक मीन होगा हॉरिजॉन्टल वाले का। ये हो गया पॉइंट नंबर 16, 15, 16 जो भी नंबर है। पॉइंट नंबर 17 क्या है? अगर किसी बॉडी को ऊपर की ओर यू वेलोसिटी से फेंका गया, नीचे की ओर यू वेलोसिटी फेंका गया, और तीसरे को सी को ड्रॉप कर दिया गया, यू बराबर 0, यहाँ सीधे ड्रॉप कर दिया गया, ये सीधे ड्रॉप कर दिया, ये ऊपर से आकर कैसे आएगा, तो इसके ऊपर बगल में T1 टाइम लगा, जो नीचे फेंका गया T2 टाइम लगा, जो ड्रॉप किया T3 टाइम लगा, तो इसमें भी T3 बराबर रूट ओवर T1 इंटू T2 होगा। ठीक है, ये तीन पॉइंट नंबर 17 है, 18 पॉइंट नंबर नोट कीजिए इसको। तो फिर 18 पॉइंट नंबर बताते हैं। सिंस द 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछ रहा है आजकल। सिंस द पाथ ऑफ द 18 पॉइंट नंबर है, सिंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल will be parabolic, so we can find the radius at any point, किसी भी पॉइंट पर रेडियस निकालने के लिए पूछता है परीक्षा में। जैसे इस तरह से फेंका तो इसका रेडियस पूछेगा कि इस जगह का रेडियस बताइए, तो रेडियस इज इक्वल टू होता है, रेडियस इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। मानते किसी बॉडी को यू प्रोजेक्टर से फेंका गया, यू वेलोसिटी से, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा होगा, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा। अगर इसको सर्कल बना दिया जाए तो जी तो नीचे ही लगेगा, सेंटर की तरफ ही लगेगा, तो टॉप पोजीशन पर रेडियस एट टॉप पोजीशन हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर कॉस टेंजेंशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। ओके, अगर लेकिन किसी जनरल पॉइंट पर निकालने का दे तो इसको नोट कीजिए। अगर किसी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला तो बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, मानते इस पॉइंट पर बोला कि इस पॉइंट पर बताइए कि क्या इसका रेडियस होगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा एंगल यू से फेंका गया था, तो इधर की ओर कंपोनेंट यू कॉस थीटा, मानते यहाँ का वेलोसिटी v है और यहाँ पर बना रहा है अल्फा एंगल, तो इधर हो जाएगा v कॉस अल्फा और इधर की ओर v साइन अल्फा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी थ्रू द मोशन मस्ट बी सेम, दैट इज u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा, और v बराबर क्या होगा u cos थीटा बाय cos अल्फा, तो वी गेट टेंजेंशियल वेलोसिटी। नाउ दिस इज अल्फा, इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस इज 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये टेंजेंट रेडियस का परपेंडिकुलर होगा, g is acting vertically downward, this is 90 minus alpha, then this will be alpha, so g has two components, g cos alpha and g sin alpha, so radius at any point is equal to v square by acceleration acting towards the center g cos alpha, v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं u square cos square theta by cos square alpha g cos alpha, और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
बाय जी कॉस क्यू अल्फा। ये किसी भी पॉइंट पर किसी भी एंगल से बनाते हुए का फॉर्मूला है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है कि रेडियस टॉप पोजीशन पर 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए जब 30 डिग्री बना रहा है तो क्या होगा। तो एक लाइन में इसमें भी एक फॉर्मूला हम निकाल दिए हैं, R इज इक्वल टू आर टी बाई यू स्क्वायर कॉस का थीटा बाई जी बराबर आर टी। देखो दिस इज गिवन, यू स्क्वायर कॉस का थीटा बाई जी, यू स्क्वायर कॉस का थीटा बाई जी, दिस इज आर टी रेडियस एट द टॉप पोजीशन बाय कॉस क्यू अल्फा। मानकर बोलता है कॉस क्यू अल्फा, बोलेगा 30 डिग्री पर बताइए 60 डिग्री से फेंकेगा 30 डिग्री पर रेडियस क्या होगा, तो टॉप पोजीशन पर जो रेडियस दिया रहेगा उतना इंटू कॉस क्यू 30 डिग्री निकालना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसको क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, इसी से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। नोट कर लीजिए इसको। पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19 क्या होगा, रेडियस हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, रेंज रिलेशन अगर किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया तो ठीक है। और लगभग 30 पॉइंट्स हैं, अभी हम 18 पॉइंट्स तक बताएं, बाकी 2 और 3 प्रोजेक्टाइल अभी बताएंगे, तो उससे पहले उस तक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे। अभी देखते हैं, एक एप्लीकेशन बता देते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पहला बताते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसको कहा जाता है, जब किसी बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, when the body is projected horizontally from certain height, then it is called horizontal projectile. A body is projected with velocity u, making theta angle, making projected with velocity u horizontally from height y, covers x distance in t second, covers x distance in t second। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ y एक्सिस। तो जब हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली सोचेंगे। s बराबर कितना x है, u कितना वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली फेंकेगा, u इंटू टी, और देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज t बराबर x बाई u। वर्टिकल मोशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वर्टिकल में नीचे की ओर आ रहा माइनस वाई, u इस डायरेक्शन में है ही नहीं तो 0, माइनस हाफ, g नीचे लग रहा है इसलिए g भी निगेटिव, हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू g बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। It will be parabolic. How can you say it will be parabolic? Because the power of y and power of x, power of y is 1, x power of x is 2। अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रॉपर्टीज में कि ऐसे तरह के पाथ को पैराबोलिक कहा जाता है। इसमें और भी बताते तो इक्वेशन बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें टर्म आएगा,
नोट कर लीजिएगा इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वाई एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी से चलते हैं। एस बराबर माइनस वाई जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, therefore t is equal to 2y by g का रूट ओवर, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर रेंज निकालने का है तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जितना होगा, एस बराबर यू टी हॉरिजॉन्टल मोशन में, एस बराबर आर मान लेते हैं, रेंज इज डिनोटेड बाय आर। यू से फेंका गया टी का भी वैल्यू निकाले 2y बाय जी का रूट ओवर, दिस इज द रेंज। इसमें पूछ सकता किसी भी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा उस बॉडी का। मानते किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, बोल रहा कि इस जगह का वेलोसिटी बताइए t सेकंड के बाद, जो यहां से y डिस्टेंस पर है और ये x डिस्टेंस पर है, इस जगह का वेलोसिटी क्या होगा अगर u से प्रोजेक्ट किया गया था थीटा एंगल है। तो इसका सॉरी ये तो ऑब्लिक में आ गया, और हमको पढ़ा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो किसी सर्टेन हाइट से फेंका गया u वेलोसिटी से, मानते ये y डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसका वेलोसिटी क्या था, ऐसा पूछेगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, दैट मींस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ईच पॉइंट, सभी पर u वेलोसिटी होगा। और दूसरा इसका वर्टिकल निकालते हैं, तो s बराबर यू टी प्लस, या v वेलोसिटी निकालते हैं तो v बराबर u प्लस ए टी, v बाई माइनस v बाई हो गया, या v बाई हमको नहीं पता, u जीरो है इस डायरेक्शन में, माइनस जी टी, यानी वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, यहाँ का वेलोसिटी माइनस जी टी हो गया। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होगा यू आई माइनस जी टी जे। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स जी टी बाई यू मॉड। इस तरह से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर कि क्या उसका वेलोसिटी होगा, क्या डायरेक्शन होगा, और क्या उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, तो एम इंटू यू करके निकाल सकते हैं, एम इंटू वी करके निकाल सकते हैं, भी निकाल चुके। ऐसा पर एक क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर बोले कि किस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए। हाँ, तो दो स्टोन फेंका गया, एक U1 से फेंका गया, दूसरा U2 से फेंका गया, सर्टेन हाइट किसी से भी, तो किस जगह जाते जाते उसका वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू, एट विच पॉइंट देयर वेलोसिटी वेक्टर, विच टाइम देयर वेलोसिटी वेक्टर आर perpendicular to each other. Find the separation. ये क्वेश्चन एरोड्रोप का है। क्वेश्चन नंबर अगले दिन हम बुक में देख करके अगले दिन बुक रखेंगे, एरोड्रोप का क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे इसमें, तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर कितना, लेकिन है ये क्वेश्चन एरोड्रोप का ही है। क्वेश्चन नंबर शायद 13 या 14 क्वेश्चन नंबर है, 14 या 15 होगा, देख लीजिएगा। तो कहां से दिमाग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बता रहा है कि देयर वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हम अभी तक वेक्टर जितना भी पढ़े उसमें सिर्फ एक ही जगह प्रॉपर्टीज मिला है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो।
So first we have to find out their velocity and then we will do dot product between them. We get the time period. For after t सेकेंड मानते हैं कि इसका वेलोसिटी u होगा u2 माइनस u2 और नीचे कितना होगा gt अभी पता है माइनस gt मतलब वेलोसिटी ऑफ a एंड वेलोसिटी ऑफ b निकालते तो वेलोसिटी ऑफ a कितना हो जाएगा माइनस u2i और माइनस gt अब b का क्या होगा मानते यहाँ पर जाकर के परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे का 90 डिग्री पर आया तो यहाँ पर vb बराबर कितना हो जाएगा ये तो u1 आएगा ये कितना आएगा माइनस gt तो इसका वेलोसिटी हो गया माइनस u1 प्लस u1 i माइनस gt और इसका डॉट प्रोडक्ट बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज va डॉट vb इज इक्वल टू 0 तो माइनस u2i माइनस gtj डॉट u1i माइनस gt बराबर 0 तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i बराबर 1 माइनस u2 माइनस u1 माइनस u1 u2 माइनस gt माइनस gt प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू u1 इंटू u2 t इज इक्वल टू u1 इंटू u2 बाई का रूट ओवर बाई g इतने टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा फाइंड द सेपरेशन तो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन देम तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों कितना हो जाएगा u1 प्लस u2 बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सो देयर वेलोसिटी आर एडेड एंड सेपरेशन बराबर क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन सो u1 प्लस u2 इनटू t दैट इज u1 प्लस u2 और t अभी निकाले कितना निकाले रूट ओवर u1 इंटू u2 बाई g so they are separated by distance u1 plus u2 root over u1 into u2 by g. This is the most important question on this concept. Now in next class, next lecture, I will teach you the other three type of projectile as some important concept. I think this will be also very profitable for you in the case of school, in case of your knowledge or any competition point of view. So if अगर आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा जरूर हमको लाइक जरूर कीजिएगा आप पढ़िएगा जरूर बिना पढ़े वो आपको पता नहीं चलेगा सिर्फ ऊपर ऊपर देखने से नहीं होगा रुक रुक कर पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए ओके थैंक यू बाय